Okay, good morning everybody. Today we have come up with the discussion of AC power. Actually बचा अभी तक हमने theorems पढ़ी, Thevenin's theorem, Norton's theorem, maximum power theorem, and we discussed theorems with DC circuits. Now I wanted to discuss the theorems with the AC circuits, but it is not possible for me to move towards the theorems with the AC unless I discuss the power. So AC power discussion that's why is being carried out. Okay, तो moving on, कुछ चीज़ें मैंने already पहले से लिख रखी हैं. तो देखिए power is of two types. Okay, instantaneous power and average power. So we are talking about instantaneous power, and this is instantaneous power. Okay, if we move towards the definition is very clear that we have studied from childhood कि भाई power instantaneous power का मतलब क्या होता है? Product of voltage drop across the element that is uh, in consideration and the current flowing through it. मतलब कोई भी element है इस तरीके का, ठीक है? Now this element can contain active element or passive element. Okay, it might contain anything. Okay, or it might contain inductor, as if now we are considering only passive elements, that is R, L और C. ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है VT और इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है IT. ठीक है, तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी वो होगी प्रोडक्ट ऑफ VT इंटू IT. VT हमने मान लिया Vm cos ओमेगा t प्लस थीटा V. ठीक है, दिस इज थीटा V इज वो phase angle of voltage and theta I is phase angle of current. So जो प्रोडक्ट होगा इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा. जब इसको सॉल्व करोगे आप थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आपको दो पार्ट्स मिलेंगे. One part will contain, this part will contain the term omega. This part will contain the term omega, whereas the other part will not contain the part omega. तो ये part है time dependent, और ये part जो है ये क्या है, time independent. ये एक DC term है, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है फेज एंगल में बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस आ रहा है इसके ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी. तो ये तो हो गया, ये वाला पार्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको हमने प्लॉट कर दिया इस तरीके से. आप ध्यान दो कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वह 2 ओमेगा आ रही है. अगर आप इसको स्टैंडर्ड उससे कंपेयर करोगे एक्सप्रेशन से, जो कि होती है इस तरीके से कि Vm cos ओमेगा टी प्लस 5, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 2 ओमेगा. ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा. अगर आप ओमेगा को डबल करोगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो देखो टाइम पीरियड मैंने कितना दिखाया है, हाफ दिखाया है, कि ये पावर का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी T/2 में. ठीक है, और टी में क्या हो जाएगा, दो साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, so this is the instantaneous power that we are not very much interested in. That's why I did not draw it live. But I will talk live about the average power. That is very important. That is discussed. Actually, instantaneous power को measure करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है बेटा, it keeps on varying with time. अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दूं मैं, तो ये जो पावर है, अगर आप ऐसा कोई पावर मीटर बनाओ तो उसकी नीडल पता है क्या होगी, वो ऐसे ऐसे वे शेक करती रहेगी. उसकी नीडल क्या होगी, कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, क्योंकि पावर क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वी विल टॉक अबाउट एवरेज पावर दैट इज measurable easily and which is important. So what is average power? Coming to the good conclusion, coming to the good topic, that is average power. Average power को हम इस तरीके से define करते हैं. ठीक है, so we are doing the average over one period.
एक पीरियड के लिए हम एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। एक छोटा सा पॉइंट और है कि देखो यहाँ पे ये जो पावर है, दिस पर्टिकुलर स्मॉल pt सेम which we have just now calculated, that is instantaneous power. Okay. This is instantaneous पावर। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, लेकिन आप देखो कि मैंने जो इंटीग्रेशन किया है वो टी पे किया है। अब आप इंस्टेंटेनियस पावर का तो अभी हमने फॉर्मूला कैलकुलेट करा, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, राइट, दिस, and this instantaneous power has got a frequency which is 2 omega and the time period is t by 2. So ये क्योंकि एक पीरियोडिक वेवफॉर्म है, तो अगर आप चाहें एवरेज पावर टाइम पीरियड के लिए निकालो या उसके डबल के लिए निकालो, एवरेज बराबर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम एवरेज किस पे निकाला है, टी के लिए, हमने टी बाई टू के लिए नहीं निकाला है, जबकि पावर का टाइम पीरियड क्लियरली दिख रहा है टी बाई टू है। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द डेरिवेशन प्लाट, let me write the expression. Okay, so I am substituting the above result in this particular formula. I will get integration 0 to t, and this is the fixed part or DC part, that is Vm Im cos theta v minus theta I dt plus, and what is the time dependent part, that is 0 to t 1 upon 2 Vm Im cos 2 omega t plus theta v minus, sorry, theta I, and this is dt. सो ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेट अस टेक, ओके, सो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखना एक चीज़। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक साइनसोइडल फंक्शन का, ये तो कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट, तो ये वाला पार्ट क्या है, एक साइनसोइड है। तो एक साइनसोइड का जब हम एवरेज निकालते हैं ओवर इट्स टाइम पीरियड, देन इट इज जीरो, क्योंकि साइनसोइडल फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और उनका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है। तो जो एरिया अंडर द कर्व होता है एक टाइम पीरियड में या दो टाइम पीरियड में या तीन टाइम पीरियड में वो जीरो होगा। तो देखो इसका टाइम पीरियड कितना है, टी बाई टू, और आप कितना निकाल रहे हो, दो टाइम पीरियड के लिए, तो ये वाला टर्म एक्चुअल में वैनिश हो जाएगा, this particular term will not give you anything, so this is going to be 0. Okay, so talking about this thing can be handled. Let us move on. So average power P average will be equal to 1 upon T okay. So we can do the derivation, do the different integration of this particular thing, and that will give me 1 upon t remains outside. This entire term is constant with respect to time, है ना, differentiation with respect to time कर रहे हो तो ये सब बाहर आ जाएगा। So 1 upon 2 Vm Im cos theta v minus थीटा आई, ये सब चीजें कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अंदर क्या बचा, सिर्फ dt, सो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबा, विल बी t ओनली, है ना, and this will like cancel this t, so the answer which we are going to get is 1 upon t, oh, sorry, 1 upon t will get cancelled, so let me just erase this. I will get 1 upon 2 Vm Im cos theta v minus theta
I. So this is the formula for average power, and we can calculate the average power using this formula. This formula is important. This formula is important. Okay. अब ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए कि जो इंस्टेंटेनियस पावर थी, जो ये फॉर्मूला था ऊपर, ये टाइम डिपेंडेंट था बिकॉज इसके अंदर दो पार्ट्स थे, एक टाइम डिपेंडेंट, देखो साइनोसॉइडल ग्राफ बनाया था मैंने इसका, तो this was dependent on time and frequency. Obviously time and frequency are correlated to each other, but this average power is not dependent on time. ठीक है, so this is easily calculatable, and we actually the watt meter that we use in our laboratory responds only to this average power. Okay, so अब हम इसको कनेक्ट करते हैं अपनी फेजर फॉर्म से. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो हमें वोल्टेज दे रखा है वो इस तरीके का दे रखा है. आई मीन टू से आपको वोल्टेज दे रखा है V इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा वी. तो इसका फेजर फॉर्म क्या होगा? इसका फेजर फॉर्म होगा V, बोल्ड में लिखते हैं, मैंने ये पहले से डिस्कस कर रखा है पुरानी वीडियोस में, आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं. वी एम एंगल थीटा वी. सिमिलरली जो करंट होगी उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ये हो गई साइनोसॉइडल फॉर्म cos ओमेगा टी प्लस थीटा आई. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा फेजर फॉर्म में कैपिटल आई बोल्ड में इज इक्वल टू आई एम एंगल थीटा आई. ठीक है, तो ये तो हो गया फेजर्स. अब हमको चाहिए है, जो हमको वैल्यू चाहिए, देखो ये वाली वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो सकती है? सोचो जरा सा. ध्यान दो आप, मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ. ठीक है, और उस एक्सप्रेशंस को ध्यान दो. तो ये क्या होगा? मैंने v और i स्टार का, स्टार मतलब जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है वो हम ले रहे हैं, इसका प्रोडक्ट करा. ठीक है, प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो आपको क्या मिलेगा? वी एम एंगल थीटा वी इंटू वी एम आई एम यहाँ आ जाएगा. ठीक है, और थीटा वी और थीटा आई क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो दैट विल बी वी एम आई एम थीटा वी प्लस थीटा आई. तो ये हो गया प्रोडक्ट, और इसको एक काम करो, हाफ से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो आपको ये मिलेगा. ओके, एक इसके अंदर छोटी सी गलती बेटा, आप खुद सोचना है इस बारे में कि ये जो एंगल है ये बेसिकली माइनस का होगा. क्यों? बिकॉज हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं. तो दिस इज वेरी सिंपल टू नोट डाउन कि यहाँ पे एंगल क्या होगा? माइनस का होगा. ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लिखेंगे अपना, ये कौन सा फॉर्म है? फेजर फॉर्म है. ठीक है, फेजर फॉर्म को हम किस में लिख सकते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं. आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था आपको, अगर कोई भी फेज कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आप या तो फेजर फॉर्म में लिख सकते हैं, या रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर पोलर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अगर हमने लिखा आर एंगल थीटा, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा. तो ये हो गया आर एंगल थीटा. हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस 1/2 वी एम आई एम साइन थीटा वी माइनस थीटा आई. सो दिस इज व्हाट इज वी आई स्टार. ये मैंने बहुत समझदारी से लिखा है, जानबूझ के. ठीक है, दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू ब्रिंग दिस एक्सप्रेशन this particular expression has come here.
अगर आप ध्यान से देखो ये। Therefore, the definition of average power now reduces to in the AC form like this कि हम 1/2 VI स्टार का रियल पार्ट निकालेंगे, रियल पार्ट, एंड दैट विल बी एवरेज पावर। तो इसको हम दोबारा से लिखते हैं, वी आर रीराइटिंग दिस। एवरेज पावर is defined as 1/2 रियल पार्ट ऑफ वी आई स्टार। यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज फेजर, I क्या है, करंट फेजर का कॉन्जुगेट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आपका एवरेज पावर। इसका फॉर्मूला बाद में क्या निकल के आएगा टाइम डोमेन में, दैट विल कम आउट टू बी 1/2 Vm Im cos theta V minus theta I. The unit will be watt. Okay. The unit is important. Why it is important, you will see it later on, but this unit is important because we categorize two more powers. For that we define the units to be different. Okay, now we are going to consider two special cases for which we will see that the phase angle between voltage and current is changing. So let us see those special cases. Okay, so there are two cases when the phase angle is zero. We know that when the phase angle is zero, voltage और current के बीच में angle zero होता है in case of resistive circuit. resistor के केस में voltage और current क्या होते हैं, same phase में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा V इज इक्वल टू थीटा I। ठीक है, और फिर हम क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे। तो पावर क्या हो जाएगी, एवरेज पावर, दैट विल बी P इक्वल टू 1/T Vm Im cos थीटा V माइनस थीटा I क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस विल बी द फॉर्मूला। ओके, ऑल्सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। ओके, सो इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ। अब इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है बेटा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, या ऐसे छोड़ो, इसको बना लो ट्री को। ओके, एक फॉर्मूला याद है सबको, Vm इक्वल टू क्या होगा, Im इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लागू होगा। ये किसके लिए है, आपकी Vm इक्वल टू IMR। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम देखो क्या लिखेंगे इसको। हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे अप्लाई करो, इट विल बी 1/2 Vm। Im की जगह क्या लिखोगे, सॉरी, Im की जगह लिखोगे आप Vm अपॉन, so it will come out to be 1/2 R Vm square. This will come out to be 1/2 Vm square. अब बताओ आप Vm स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, what you can call Vm square as। देखो V इक्वल टू क्या है, okay, so not V, we'll call it here, we'll write it here only. So what is V basically, well, capital V is equal to Vm cos omega t plus theta V। So this is the expression for voltage phasor। तो यहाँ पे हम इसको फेजर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं सर, थीटा V। ठीक है, so this I have, let me write it here only, just a moment. So this I am going to write like this, capital V is equal to Vm angle theta V। Similarly
करंट को कैसे लिख सकता हूं मैं? आई एम cos ओमेगा टी प्लस थीटा आई, और ये किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आई बोल्ड में इक्वल टू आई एम एंगल थीटा आई, फेज डिफरेंस। अब बताओ ये Vm एक्चुअल में क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको और कैसे लिख सकते हो इसके अलावा? ठीक है, इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है लिखने का। यस सर, इसको लिखने का एक तरीका हो सकता है, आई कैन राइट इट लाइक दिस। जस्ट लेट मी जस्ट केस 2 को नीचे ले लेना। जस्ट so sorry for the disturbance। इसको आप कैसे लिख सकते हैं further? We can write it like this, can write it like this V, और इसको कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंगल थीटा। क्यों? क्योंकि ये वाला क्या डिनोट करता है? एम्पलीट्यूड, और ये वाला डिनोट क्या करता है? एंगल। तो इसको हमने लिख दिया ये, और इसको हमने लिख दिया ये। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे और इस एक्सप्रेशन की जगह लिख देंगे 1/2R V, जो वोल्टेज फेजर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सिमिलरली जब हम आपका करंट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे पावर को, तो हम क्या करेंगे? Vm की जगह क्या लिख देंगे? IMR। so that will be 1/2 Vm की जगह क्या लिख देंगे? IMR, that will be IM square R, and that will be 1/2। अब IM को क्या लिख सकते हैं हम? IM स्क्वायर को, what is IM? IM is nothing but magnitude of current phasor. So I will write IM like this, 1/2 I के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो ये हो गई पावर की डेफिनेशन जब आपको वोल्टेज फेजर दिया हुआ हो ये, और ये हो गई पावर की डेफिनेशन जब आपको करंट फेजर दिया हो इन केस ऑफ अ रेजिस्टेंस। हाँ, इन केस ऑफ इंडक्टर या कैपेसिटर तो कहानी ही अलग हो जाएगी, क्योंकि आपका थीटा वी माइनस थीटा आई क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर इंडक्टर है तो करंट लीड करेगा, और अगर कैपेसिटर है तो वोल्टेज आपका लीड करेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, C फॉर कंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर तो इसके अंदर करंट लीड करेगी। करंट भी C से होता है और C से कैपेसिटर होता है, और इंडक्टर जो होता है वो अपोजिट होगा, तो उस केस में वोल्टेज लीड करेगा। ठीक है, तो वो हमारा अभी बहरहाल इंटरेस्ट नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट पावर। सो पावर विल बी पावर P इक्वल टू 1/2 Vm Im cos थीटा वी माइनस थीटा आई। अच्छा, चाहे थीटा वी माइनस थीटा आई लो, चाहे थीटा आई माइनस थीटा वी लो, क्योंकि cos एक लीनियर फंक्शन है। सो दिस टर्म विल बिकम जीरो, सो पावर विल बी जीरो। सो वी कैन कंक्लूड power average consumed by is equal to zero in case of inductor and capacitor। ये सब आइडियल और प्योर की बात हो रही है, कोई भी रेजिस्टिव पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ पावर। let me see I can include one numerical or not। okay, one numerical can be taken। चलो अभी 24 मिनट की वीडियो हुई है, एक न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं कैसे करते हैं। okay, moving on to the numerical, this is small numerical I have taken for your convenience। देखो, एक अप्लायंस है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, और करंट है वो ऐसा आ रहा है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है,
हालांकि आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें वोल्टेज आगे जा रहा है, करंट पीछे जा रहा है, तो इसके अंदर इंडक्टिव और रेजिस्टिव एलिमेंट होंगे, लेकिन हम इतना ज़्यादा भी इसमें ध्यान नहीं देंगे, हमें सिर्फ पावर कैलकुलेट करना है। तो देखो पावर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे तो वो ऐसे निकालेंगे, वी टी आई टी, जो टाइम डोमेन वाला तरीका है, जो कि पुराना तरीका है, हम वो यूज नहीं करेंगे, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और फिर पावर एवरेज निकालेंगे तो वो हम कैसे निकालेंगे, 0 से टी, टी and then I'm sorry 1 upon t, that will be 1 upon t, 0 से t, and then I will put pt here, and that will be like little bit problematic, cos a plus cos b लगाना पड़ेगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जल्दी से इन दोनों को क्या कर लेंगे, फेजर में कन्वर्ट कर लेंगे, और फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, पी एवरेज का। पी एवरेज का सर हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है, एंड दैट फॉर्मूला इज 1 upon 2 real part of vi star. This is very convenient and very comfortable and also recommended. Okay, the unit will be watt. Okay, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसको अलग ले लेते हैं, इसको हम कर ले रहे हैं कॉपी, और यहाँ कर ले रहे हैं पेस्ट। ये आ गया। Okay, this is our voltage, and then we will take its phasor, and then phasor will be like this. That's why I was stressing so much on the phasors, that these are very very important. 30 degree, ये हो गया voltage. Now I am taking the current, and this current is like this. I have copied it here, I am pasting it here, this has come out here. Okay, and now I am going to take its phasor very easily. phasors को हम लोग bold में denote करते हैं, and 30 angle -20 डिग्री। जिसको भी फेजर की जरूरत पड़ रही है या नहीं समझ में आ रहा है, वो जाके प्रीवियस वीडियोस मेरी देखेंगे, मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दे रखा है, प्लीज देखिए। उन बच्चों को भी बताइए, उनके साथ भी शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत है। नॉलेज इंक्रीजेस व्हेन यू शेयर इट। ओके, डोंट कीप इट अप टू योरसेल्फ बेटा, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ओके, तो यहाँ तक आ गया। अब फटाफट ये एक्सप्रेशंस इन दोनों को किस में रखना है, इसको भी, ओके सो सॉरी, इसको भी इसमें रखना है, इसको भी इसमें रखना है, निकाल लो फटाफट। क्या हो जाएगा, P average will be equal to, पहले काम करते हैं वी आई स्टार निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर उसका रियल पार्ट निकाल लेंगे, फिर 1/2 कर लेंगे। ओके, तो हम इसको पहले यहाँ से हटा दे रहे हैं, हम निकालते हैं वी आई स्टार की वैल्यू। सो व्हाट इज वी, 100 एंगल 30 डिग्री, सो दिस इज वी। व्हाट इज आई स्टार, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, सो इट विल बी 30 एंगल 20 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया, जब हम प्रोडक्ट करते हैं दो फेजर्स को पोलर फॉर्म में, तो क्या हो जाता है, तो जो एम्पलीट्यूड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो फेजेस हैं वो ऐड हो जाएंगे। सो दिस विल बी 3000। ओके, एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका रियल पार्ट निकालना है, तो पहले इसको साइनोसोइडल फॉर्म में तो लिखो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तभी तो रियल पार्ट निकालोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3000 cos 50 प्लस j sin 50। ओके, अब क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ वी आई स्टार, तो वो कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट रियल है सर, और वो वाला पार्ट इमेजिनरी है, सो दैट विल बी 3000 cos 50 डिग्री। अब पावर क्या हो जाएगा, इसका 1/2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/2, and that will be power average. So once you will calculate it using your calculator, it will give to you 1500 cos 50, and that will come around
Okay, so after you do the calculation, then you will understand that this value comes out to be approximately, just now I calculated 964. So this is the result. I hope I was able to make you understand certain things about AC power. And once you go through the video one more time, I hope you will be able to recollect the things one more time. I am making you recollect. सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर उस इंस्टेंटेनियस पावर को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके डिफाइन हम डिराइव करते हैं एवरेज फार्मूला, एवरेज पावर का फार्मूला, एंड दैट कम्स आउट टू बी Vm Im cos थीटा v माइनस थीटा i। इसको हम थीटा भी बोलते हैं, जिसको हम बाद में पावर फैक्टर बोलेंगे। And that power factor will define the voltage difference, the phase difference between voltage and current across the element. Okay, so uh, this is the power 1 upon 2 Vm Im cos theta v minus theta i। फिर हमने इसको कोरिलेट करा अपने फेजर फॉर्म से, तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फार्मूला निकल के आता है वो है P average is equal to 1 upon 2 real part of voltage phasor इनटू करंट फेजर कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने अगर फेज डिफरेंस जीरो है या रेजिस्टर है उसमें देखा, so that comes out to be magnitude of voltage phasor square upon 2r, this thing, okay। And if it is current, we have current phasor, then it will be magnitude of current phasor square into resistance upon 2. So that is the formula in case of a resistance, in terms of voltage and in terms of current. In case of a pure capacitor and inductor, the average power will be zero. This is a numerical that we have seen। इसमें वोल्टेज और करंट दे रखा था। हमने टाइम डोमेन वाले मेथड का यूज नहीं करा है, हमने फेजर वाले मेथड का यूज करा है। दैट इज वेरी पॉपुलर एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ओके। तो दिस इज द डेरिवेशन, यू हैव अ लुक एट दिस। इसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने बताया। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and keep watching, keep subscribing, and if subscribers will improve, my content will improve, I will get motivated, my views will improve, I will put more and more content for you, for all my dear students. Thank you so much, have a great day, and all the very best for your semester exams, all the very best for your future. Stay blessed. Bye bye, take care.